তো আমরা এই ক্লাসটা করতেছি তোরিয়াল লিগে একটা এক্সট্রা দিলাম, এটার মধ্যে আমরা এস ব্লকটা একটু দেখি, যেহেতু সিলেবাসে আছে। আমরা যেটার ক্লাসে যেটা করতেছি এটা ক্লাসে থাকবো, আর এস ব্লক যদি শুরু করি, যেহেতু শুরু করতেছি আজকে, এটা আমরা ওই জায়গাতেই করুম, মানে এই এক্সট্রাটাই করুম। কারণ এখন তোমরা জানুয়ারি পর্যন্ত ক্লাস বন্ধ আছে, অনেক স্কুল স্কুল সব বন্ধ। সে কারণে আমরা এটার ক্লাসটি স্যার ব্যাচ 1 স্টুডেন্ট করতে পারবো নি? করতে পারবো, করার তো নাকি লিগা আমরা না করছি না কোনোদিন। আচ্ছা ঠিক আছে, লেট আস স্টার্ট। আজকে আমরা যেটা শুরু করবো এটার নাম হলো গিয়েছিল তোমার এস ব্লক। এনসিইআরটি। আচ্ছা, এস ব্লক জেনারেলি তোমার গ্রুপ নাম্বার 1 আর গ্রুপ নাম্বার 2 এই দুটোরে কয় এস ব্লক এলিমেন্ট। এখানে আছে হাইড্রোজেন, এখানে আছে লিথিয়াম, সোডিয়াম, এখানে পটাশিয়াম, এখানে হলো রুবিডিয়াম, এখানে হলো সিজিয়াম। এখানে আমরা হাইড্রোজেনটা ক্যালকুলেট করি না, বিকজ হাইড্রোজেন শোজ সাম অ্যানোমালাস প্রপার্টিজ। বাট এখানে লিথিয়ামের লগে আছে বেরিলিয়াম, তারপরে আছে ম্যাগনেসিয়াম, তারপরে আছে তোমার ক্যালসিয়াম, তারপরে আছে স্ট্রনসিয়াম, তারপরে আছে এখানে বেরিয়াম। তাহলে আমরা দেখতেছি এই যে আমরা এস ব্লক ফরম অ্যাকচুয়ালি কিতা ফরম, তার প্রপার্টি সম্পর্কে ওই ফরম আমরা এস ব্লকে, সো ইউ শুড বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্যাট। আচ্ছা, প্রথম কথা হলো হোয়াই দে আর এস ব্লক। আনসার হলো গিয়েছিল তোমার while writing the electronic configuration the last electron enters in the s block. এক্সাম্পল তোমরা আমি দেখাই, যেও মনে করো তুমি সোডিয়ামের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন লিখলে আর ম্যাগনেসিয়ামের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন লিখলে তুমি পুরোপুরি বুঝা লাইবা। যেমন সোডিয়ামের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন হলো 11 1s2 2s2 2p6 3s1। ম্যাগনেসিয়ামের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন লিখলে তুমি দেখা লাইবা 12, সব ঠিক আছে, এটা হইব গিয়ে সেটা তোমার 3s2। তাহলে আমরা দেখতেছি যে while writing the electronic configuration of the elements of this block, তারা লাস্ট ইলেকট্রনটা গিয়ে সেটা তোমার শেষ হইব s অরবিটালে, এলিগা তার নাম হলো গিয়ে সেটা তোমার s ব্লক এলিমেন্টস। তাহলে ডেফিনেশনটা কেলিগা দেওয়া হয়েছে, s ব্লক এলিমেন্ট কেলিগা কোয়া হয় বিকজ তারা লাস্ট ইলেকট্রনটা তোমার s ব্লকে গিয়ে সেটা তোমার এন্টার করে। আচ্ছা, তো আমরা যখন ফরুম, আমরা গ্রুপ 1 আলগা ফরুম, গ্রুপ 2 সেপারেটলি ফরুম। তাহলে প্রথমে আমরা এস ব্লকের কিছু প্রপার্টি তাই না লই, বলা আমার দেখো সাম প্রপার্টিজ। এগুলো তোমার ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ অর পিরিয়ডিক প্রপার্টিজ। এক নাম্বার হইলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টি, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ভাই, প্রপার্টি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। এক নাম্বার হইলো দে হ্যাভ লো আইপিস, আয়নাইজেশন পোটেনশিয়ালস আর ভেরি ভেরি লো। নাম্বার 2 শব্দ আমরা বুঝুম, দে শো flame test. Number 3, they are highly electropositive. Number 4, the electropositivity increases while going down. Number 5, they react violently with air and water. Number 6, they have less negative electron gain enthalpy। এই জায়গাটা কি হইলো,
এন লেহন জানা কে লিখে নাম্বার 7 হয় নাম্বার 7 they acha they can be used in the photoelectric cells example হলো গিয়ে সেটা তোমার cesium number 8 okay they are oxides and hydroxides are basic number 9 they can form colorful different types of oxide example দেখাই যেমন লিথিয়াম বানায় লিথিয়াম অক্সাইড সোডিয়াম বানায় সোডিয়াম পার অক্সাইড আর পটাশিয়াম বানায় পটাশিয়াম সুপার অক্সাইড এটার নাম হলো নরমাল অক্সাইড এটার নাম হলো পার অক্সাইড এটার নাম হলো সুপার অক্সাইড আমরা দেহমিরি শব্দটি তোমরা যদি লেখা শেষ হয় তাহলে আমি পেজ উল্টামো দাও ঠিক আছে নি উল্টাই পেজ আরো প্রপার্টি আছে নেক্সট they form ionic halides which are soluble in water next they are carbonates have very high MP melting point and the melting point increases while going down. Number next they form ionic hydrides the hydrogen oxidation number H minus তাহলে NaH KH RBH CSH sodium hydride potassium hydride rubidium cesium hydride is very less found okay next সবটি অ্যানসারের মধ্যে আছে their ammonia solution is blue when added in excess produces copper like color or bronze like color তাহলে এই যে প্রপার্টি আমরা লিখছি এটি আমরা সবই একটা একটা করে ডিসকাস করব we will discuss them one by one তাহলে এটা মনে রাখো আমরা করতেছি এর মধ্যে লিথিয়ামটা সবচেয়ে ভালো মতো পড়তে হইব আমরা একটা একটা করে শুরু করতেছি ফার্স্ট আমরা দেখুন এনসিইআরটি এর মধ্যে জিডি আছে ম্যাক্সিমাম ডি এনসিইআরটি এর মধ্যে আছে তাহলে আমরা প্রথম যেটা দেখুন এটার নাম হলো গিয়া সেটা দা অ্যামোনিয়া সলিউশন ইজ ব্লু এই জায়গাটা আমরা প্রথমে দেখুন সুস্বাগত আমি আশা করি তোর কাছে একটা বই আছে তুই বইটা খুললে সেটা দেখ এই মানে জিহান থেকে এস ব্লকটা শুরু হইছে হ্যাঁ একটা দুইটা তিনটা পেজের মধ্যে থাকবো তিন চারটা পেজের মধ্যে থাকবো অ্যামোনিয়া সলিউশন ইজ ব্লু ভালো মত দেখ খুঁজা পাইবি আমি এটা বুঝাই আগে দেখ পয়েন্টটা কি ছিল the ammonia solution ভালো মতো বুঝালো মুখস্থ করবে না the ammonia solution of alkali metals is লগিয়া সেটা তোমার ব্লু এটা আমরা কেমনে এক্সপ্লেইন করব মনে করো একটা বিকার লইছো দিস ইজ এ বিকার এটার মধ্যে তুমি অ্যামোনিয়া দিছো কি দিছো অ্যামোনিয়া এবার তুমি কি তা করলে এটার মধ্যে একটা মেটালের টুকরা সোডিয়াম মেটালের টুকরা এই ফেলাই দিলা
ফালানোর লগে লগে দেখবা কালারটা হয়ে যাবো তোমার এমন কালার ব্লু হয়ে যাবো, কালারটা এই হয়ে যাবো। এটা কেলিকা হয় বাবা দেখ। সোডিয়াম নরমালি কি কন্ডিশনে আছে? জিরো অক্সিডেশন স্টেট। সোডিয়ামের অক্সিডেশন নাম্বার কত? 0। এটা যখন তুই অ্যামোনিয়ার লগে জোড়া লাগাইবি, অ্যামোনিয়া কিটা করব? NH3 হোল n একটা কমপ্লেক্স বানাবো। কিটা বানাবো? কমপ্লেক্স। এটা কিটা কয়? কমপ্লেক্স। কমপ্লেক্স মানে এটা কোঅর্ডিনেশন সল্ট। কোঅর্ডিনেশন সল্ট আমরা যে মেনসেট ক্লাসে ক্লাস করতেছি, ভিডিও দিতে আছি কোঅর্ডিনেশন সল্টের, তোমরা দেখা লইও কিটা কিটা দিতে আছি এখানে। প্লাস বাই দিব একটা ইলেকট্রন, উপরে চার্জ দিব +1। কথাটা বোঝানোর চেষ্টা কর। তুই যখন সোডিয়াম মেটালের জিরো অক্সিডেশন স্টেটে তুই যখন অ্যামোনিয়ার মধ্যে দিবি ফালায়া, ফালাই দিলে কি হইব? অ্যামোনিয়া উইল ফোর্স সোডিয়াম টু রিলিজ ওয়ান ইলেকট্রন ইন দা সলিউশন। তাহলে সোডিয়াম কিটা করব? একটা ইলেকট্রন, ওই দেখ এই যে তোর বিকার লইছস, এই সোডিয়াম কিটা করছে? কমপ্লেক্স বানাইছে আর ইলেকট্রন ছাড়ছে। এবার তুই সোডিয়াম তো আর তুই একটা লই যাতি না, তুই লবি মিনিমাম 1 মোল, 6.023 ইনটু 10⁻23। এটার মধ্যে অ্যাটম আছে। কিটা আছে? অ্যাটম আছে। আচ্ছা, তাহলে যদি একটা অ্যাটম, একটা সোডিয়াম অ্যাটম যদি একটা ইলেকট্রন ছাড়ে, তাহলে 6.023 ইনটু 10⁻23 কতটা ইলেকট্রন ছাড়বো? এতটাই ছাড়বো। তাহলে হিউজ নাম্বার অফ ইলেকট্রন তৈরি হইব এখানে, প্রচুর ইলেকট্রন, অনেক। এ সমুদ্র, এটা কয় সমুদ্র অফ ইলেকট্রন, এ সি অফ ইলেকট্রন ইজ প্রোডিউসড। কিটা হয়? এ সি অফ ইলেকট্রন। আবার কইতাছি, এই প্রসেসটার নাম হলো অ্যামোনোলাইসিস। অ্যামোনোলাইসিস মানে অ্যামোনিয়া জোড়া লাগছে। জল ঢুকলে কিটা হয়? হাইড্রোলিসিস। তোরা পড়াইছি আমি। জল ঢুকলে নাম হয় হাইড্রোলিসিস, অ্যামোনিয়া ঢুকলে নাম হয় অ্যামোনোলাইসিস। তাহলে অ্যামোনিয়া, আবার বলতেছি, এমন প্রথমে সোডিয়াম কি আছিল? অক্সিডেশন নাম্বার 0। তুই ফালাইছস এর মধ্যে অ্যামোনিয়ার মধ্যে। অ্যামোনিয়া ইজ এ স্ট্রং লিগ্যান্ড। আমরা যেহেতু কোঅর্ডিনেশন কেমিস্ট্রি ভিডিও দিতেছি, আমি আশা করি তোমরা দেখতেছো না, যদি দেখতা তাহলে এটি ফাল্লা হইলে। আচ্ছা যাই হোক, তাহলে অ্যামোনিয়া কিটা করে? অ্যামোনিয়া উইল ফোর্স সোডিয়াম টু রিলিজ ওয়ান ইলেকট্রন। হ্যাঁ, একটা ইলেকট্রন রিলিজ করে দিছে। দিলে পরে কিটা হয়? একটা সমুদ্র তৈরি হয় ইলেকট্রনের, সি অফ ইলেকট্রন। এবার কিটা হয় দেখো, এবার যেই মাত্র সমুদ্র তৈরি হয়, হোয়াট হ্যাপেন্স দেখো, ভালো মতো বুঝো। এই যে ইলেকট্রনটি আছে, এটিকে কয় ফ্রি ইলেকট্রন। কিটা কয়? এটারে ফ্রি ইলেকট্রন। ফ্রি ইলেকট্রন মানে বাংলাতে কিটা কয়? বাংলাতে কয় মুক্ত ইলেকট্রন। ফ্রি ইলেকট্রন মানে কিটা কয়? এটারে মুক্ত ইলেকট্রন মানে ইজিলি ইহার থেকে এটি মধ্যে কোনো অ্যাট্রাকশন নাই। তোরা ক্লাস 11 এ আমি সারা জীবন কিতা পড়াইছি? ইলেকট্রন কই থাকে? নিচে থাকে। নিচে মানে লো এনার্জি স্টেট। এটার নাম কিতা? এটার নাম হলো লো এনার্জি স্টেট। ইলেকট্রন কই আছে? ওখানে লো এনার্জি স্টেট। ভদ্রলোকেরা কিতা কয়? ভদ্রলোকেরা কয় এটারে গ্রাউন্ড স্টেট। ভালো মতো বুঝো, ইলেকট্রন কই আছে? গ্রাউন্ড স্টেটে। এবার তুমি কিতা করছো? এই বিকারটা নিয়ে সেটা তুমি রোদ্রের আলোর মধ্যে, সূর্যের আলোর মধ্যে ধরছো। সূর্যের আলো, ঠিক আছে? সূর্য। এবার সূর্য থেকে এখানে লাইট পড়ছে। লাইট ফললে কি হইব? ইলেকট্রনটি কি হয়ে যাবো? এক্সাইটেড হয়ে যাবো। কি হয়ে যাবো? এক্সাইটেড। এক্সাইটেড মানে এনার্জি হের বাইরে যাবো। হ্যাঁ, কিটা করবো? এখানে থাকতো না। অহন কই যাবো কোসেন? হের এনার্জি বাইরে গেছে গা, ইট উইল জাম্প। কই যাবো গা? উপরে যাবো গা। জাম্প করছে। নিচে কিটা হয়ে যাবো গা? খালি হয়ে যাবো গা। কথা বুঝ, কথা বুঝ। ইলেকট্রনের মধ্যে যেহেতু কোনো অ্যাট্রাকশন নাই, ইলেকট্রনটি কি ইলেকট্রন? এটারে কয় অ্যামোনিয়েটেড ইলেকট্রন অথবা ফ্রি ইলেকট্রন। ইলেকট্রনটি কেমনে আছে? খালি অবস্থা, ফ্রি কন্ডিশনে। যে মাত্র সূর্যের আলো পড়লো, টপ করে এটা উপরে যাবো, অনেক উপরে উঠবো, অনেক উপরে, বিকজ এর মধ্যে কেউ অ্যাট্রাকশন নাই, অনেক উপরে উঠবো। যেই মাত্র উপরে উঠবো, আমরা কিতা করছি? এভরিথিং ইন দিস ইউনিভার্স ওয়ান্ট টু বি ইন দ্য লোয়েস্ট পটেনশিয়াল এনার্জি। এই যে ইলেকট্রনটি আসিল আগে নিচে আসিল, অক্ষণ গেছে উপরে, এটি জাম দিয়ে নিচে নামবো। যেই মাত্র নিচে নামবো, নামানোর সময় এনার্জি রিলিজ করব। যে এনার্জি রিলিজ করব, এটা ফ্রিকোয়েন্সি হাই। কিতা হাই? কিতা ফর কিতা হাই? এর লেহন জানা ভাই, এই জায়গাটার মধ্যে লেহন জানা কি লেগে জানি আমি কই জানি না। এটা কিতা হাই? ফ্রিকোয়েন্সি হাই। ফ্রিকোয়েন্সি কিতা? ফ্রিকোয়েন্সি হলো হাই। ফ্রিকোয়েন্সি হাই মানে কিতা? বিপজিওর। বিপজিওর পড়তে হইব VIBGYOR। তোমরা মনে হয় পড়াশোনা করছো কিছু, তোমরা মনে জানো ভায়োলেটের ফ্রিকোয়েন্সি হাইয়েস্ট আর লালের হলো ফ্রিকোয়েন্সি লোয়েস্ট। তোমরা মনে পড়ছো রেডের হলো ফ্রিকোয়েন্সি তোমার লোয়েস্ট। তাহলে তুমি কি কালার দেখবা? যেহেতু ফ্রিকোয়েন্সি হাই, এনার্জি হাই, তুমি কালার কিটা দেখবা? ভায়োলেট কালার দেখবা। এই যে হলো এক্সপ্লেনেশন পারফেক্ট। আবার কইতাছি, প্রথম আমরা ফার্স্ট প্রপার্টি দেখতেছি আমরা এস ব্লক এলিমেন্টের, দ্য অ্যালকালি সলিউশন, অ্যালকালি মেটাল সলিউশন, অ্যামোনিয়া সলিউশন অফ দ্য অ্যালকালি মেটালস আর ব্লু। সুস্বাগত ফাজস নি, কত নাম্বার পেজও আছে এটা এনসিআরটি এর মধ্যে? 302। ভেরি গুড, আমি জানি আছে এনসিআরটি এর মধ্যে। ভেরি ভেরি গুড। দেখবা এখানে হেরা অনেক কিছু লেখছে না, কিন্তু আমি এটা সবটা কয়ে দিছি। আবার কইতাছি শুনো, এটা ওয়াজ অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট। অ্যাক্সিডেন্ট আসলে একটা, কোন একজন সায়েন্টিস্ট ওয়াজ ওয়ার্কিং উইথ অ্যামোনিয়া এন্ড সোডিয়াম, সোডিয়াম লয়ে কাজ করতে আসলো, and there was a beaker of ammonia
and the sodium metal fell into the ammonia and the color immediately become blue, then he understood something must be happening here, and he decided to study this process, and he found that yeah, this is due to the electrons. কেমনে হইছে মেটাল সোডিয়ামের মধ্যে সোডিয়াম ফালাইছস অ্যামোনিয়াতে ইলেকট্রন গেছে গা বাইরিয়া, এটার নাম হলো ফ্রি ইলেকট্রন, অথবা বদলুকেরা কয় অ্যামোনিয়েটেড ইলেকট্রন। এই ইলেকট্রনটি ফ্রি কন্ডিশনে আছে, যখন সূর্যের আলো পড়ছে they get excited to the higher excited state, but they are not stable here. While returning to their original position, they release energy in the form of an electromagnetic spectrum. ওই স্পেকট্রামের এনার্জিটার ফ্রিকোয়েন্সি ইজ হাই, ফ্রিকোয়েন্সি হাই মানে ভায়োলেট ইন নেচার, ফ্রিকোয়েন্সি ইজ লো তাহলে হলো রেড ইন নেচার, তাহলে আমরা ভায়োলেট কালার দেখুম। তো দিস ইজ দ্য explanation. You can ask from anywhere. জোজিগাও প্রশ্ন আছে নাকি কিছু? কোশ্চেনস? আমি জানি এরপর আর কিতা কোশ্চেন থাকবো। The alkali metals সবটা কই দিছি যা কোনের undergo flame test. So at first আমি আশা করি তোমরা ফ্লেম টেস্ট স্কুলে করছো না। What is a flame test? বাংলাতে কয় শিখা পরীক্ষা। ভগবান ভাই, শিখা কিন্তু মায়ের নাম না, শিখা হইলো ফ্লেমের বাংলা নাম হলো শিখা। মনে রাখি শিখা পরীক্ষা মানে ফ্লেম টেস্ট। আচ্ছা বাংলা তো কোন লাগতো না আমার, কেন জানি কইতাছে শুনো। ফ্লেম টেস্ট মানে কি তা? অনেক ফ্লেম টেস্ট কেয়ারে করে। ফ্লেম টেস্ট শুধুমাত্র 3-4টা জিনিস মনে রাখবো। হোয়াট ইজ ফ্লেম টেস্ট? 1 নাম্বার পয়েন্ট, অনলি গিভেন বাই অ্যালকালি মেটালস, অনলি গিভেন বাই অ্যালকালি মেটালস আমি আর আর্থ মেটালস আমি লিখা দেব এস ব্লক, অনলি গিভেন বাই এস ব্লক, 1 নাম্বার পয়েন্ট। নাম্বার 2, concentrated HCl is required. Number 3, platinum wire is definitely required. Number 4, Bunsen burner is required. কিতা কিতা লাগবো? Bunsen burner লাগবো। আর কিতা লাগবো? 5 নাম্বার লাগবো salt of S block, salt of কিতা লাগবো? S block। एग्जांपल দেখাই, মনে করো তোমার বাড়ির মধ্যে তুমি অক্ষণ ইচ্ছা করলে ফ্লেম টেস্ট করতে পারো, যদি তোমার কাছে HCl থাকে। আমি জানি তোমার কাছে। So we were discussing about the flame test. Actually our network connection get ruptured yesterday, that's why I'm making this video, and I will add this video with the previous one. So actually we were discussing about the flame test. So flame test is only shown by the alkali metals and alkali earth metals. जैसे कि यू कैन सी, आप लोगों को सोचो कि आप लोगों को एक NaCl का एक सॉल्ट दिया गया है, तो आप लोगों को बताया गया है which one is to identify it. NaCl has a colorless crystalline structure, so you can do the flame test in it. You can take it in a watch glass, and you can use a platinum wire and HCl. Okay, you first dip the platinum wire को पहले HCl concentrated HCl में dip करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, इसको अभी ये भीग जाएगा, ये दिस विल गेट वेट। नाउ आपको क्या करना है, इसको इसमें टच कराना है और इसको बुनसन बर्नर में पकड़ना है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को डिफरेंट कलर शो होगा। सोडियम के लिए आपका हो जाएगा आपका गोल्डन येलो, सोडियम के लिए गोल्डन येलो। पोटेशियम के लिए हो जाएगा आपका ब्लूइश वायोलेट। बेरियम के लिए हो जाएगा आपका एप्पल ग्रीन। स्ट्रोंशियम के लिए हो जाएगा आपका क्रिम्सन रेड। सीजियम के लिए हो जाएगा आपका ब्लू। कैल्शियम के लिए हो जाएगा आपका ब्रिक रेड। रुबिडियम के लिए आपका हो जाएगा रेड। सो दीज आर द कलर्स व्हिच आर शोन इन द फ्लेम टेस्ट। ये सिर्फ आपका एल्काली मेटल ही दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? 1 नंबर पॉइंट जो है, एल्काली मेटल में हैव वेरी लो आईपी, इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो बहुत कम होता है। ये जो आईपी होता है इज वेरी लो। नंबर 2 क्या है, इस फ्लेम टेस्ट के लिए आपको कॉन्सेंट्रेटेड HCl ही चाहिए होगा,
और दूसरा कोई एसिड यहाँ पे यूज करोगे तो आपका ये फ्लेम टेस्ट आपको ये नहीं दिखाएगा, क्योंकि आपका कॉन्सनट्रेटेड HCl जो है वो वोलाटाइल होता है। तो आप लोग कभी भी कोई भी सॉल्ट को आपको HCl के साथ में टच कराओगे तो उसका वोलाटाइल क्लोराइड प्रोड्यूस होगा। तो आप लोग जानते हैं जो वोलाटाइल फेज है वो गैसियस फेज है, इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है वो अच्छे तरीके से होता है। जो सॉलिड फॉर्म में होता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अच्छा नहीं होता है, इसलिए आप लोग इसमें कलर नहीं देख सकते। तो कॉन्सनट्रेटेड HCl इज यूज्ड फॉर द फ्लेम टेस्ट। और दूसरा चीज जो है प्लेटिनम वायर आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, क्योंकि प्लेटिनम जो है वो आपका इनर्ट होता है। तो इसमें आपको फ्लेम टेस्ट में प्लेटिनम का कोई इंटरफेरेंस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो ये है हमारा फ्लेम टेस्ट जो हम लोगों ने कल शुरू किया था, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन के खराब होने के कारण हम लोग ने इसको नहीं देख सके। ठीक है, तो आज उसके बाद से हम शुरू करेंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका आयोनिक मोबिलिटी। आयोनिक मोबिलिटी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका एंट्रेंस में आता है। हाइड्रेशन एंथैल्पी ये क्या है? आयनिक मोबिलिटी और हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में पहले जान लेते हैं। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है? सपोज आप मान लीजिए एक लिथियम एटम है, इसके साथ में वाटर, इसको आपने वाटर में डाल दिया, ठीक है, यू एडेड इन वाटर। एंड इसमें क्या होता है आपका, इसमें आप एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर प्रोड्यूस होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड स्फीयर। और देखेंगे आप लोग ये जो हाइड्रेटेड स्फीयर है इसमें आपका वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड हो रहा है बाय कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ में इसमें ऐड हो रहा है। तो क्या होगा, एक बॉन्ड जब प्रोड्यूस होता है तो इसमें थोड़ा सा एनर्जी निकलता है, एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। सो अब यहाँ पे देखिए आप, इतना सारा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड हो गया, तो यहाँ से आपका एनर्जी जो है निकल के आ जाएगा, एनर्जी विल बी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो देखिए इसको बोलते हैं आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी, जिससे जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, ये है आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा एच का जो वैल्यू होता है वो होता है नेगेटिव। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे यहाँ से एनर्जी निकल के आ जाएगा, इसके लिए इसका जो डेल्टा एच का वैल्यू है वो नेगेटिव होगा। तो देखिए आप लोग यहाँ पे हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में हम लोग कैसे जान सकते हैं, तो एनर्जी जो रिलीज होता है उसके सामने एक माइनस साइन बिठा देंगे, तो इसमें आपको हाइड्रेशन एंथैल्पी मिल जाएगा। तो जो पहले चीज है वो है ये, लिथियम हैज ए वेरी हाई और हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी इन ग्रुप 1। हम लोग ग्रुप 1 के बारे में देख रहे हैं। तो इन ग्रुप 1 में क्या होता है, लिथियम हैज द हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसका मतलब क्या है, जब लिथियम वाटर के साथ में ये जो हाइड्रेटेड स्फीयर प्रोड्यूस करता है, इसके लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां से रिलीज होता है, इसके लिए इट इज मोर स्टेबल। क्योंकि हम लोग जानते हैं लोअर द पोटेंशियल एनर्जी हायर इज द स्टेबिलिटी। किसी भी सिस्टम से एनर्जी जब रिलीज होता है तो उसका स्टेबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाता है। अभी देखेंगे सीजियम का साइज जो है वो है आपका बड़ा साइज है। आप इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है इसका चार्ज डेंसिटी कम होता है, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल जो है इसमें ज्यादा नहीं ऐड हो सकता। तो ऐड नहीं हो सकता मींस क्या होगा, इसमें से एनर्जी, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। तो इसमें क्या होता है, डेल्टा एच का जो वैल्यू होता है वो लेस नेगेटिव होता है। क्या होता है, लेस नेगेटिव। सो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन सा स्टेबल है, लिथियम का जो हाइड्रेटेड स्फीयर है वो ही यहाँ पे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, ये गया आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है, व्हेनेवर ए हाइड्रेटेड स्फीयर इज फॉर्म्ड with the metal, the amount of energy that is released, you can put a negative sign in front of it because energy is released, that is the exothermic process. तो ये होता है आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयोनिक मोबिलिटी। ये आयोनिक मोबिलिटी क्या होता है? आयोनिक मोबिलिटी is the ability of the is the speed is the ability of the ion to move in the solution
इसमें क्या होता है, जिसका आयोनिक मोबिलिटी ज्यादा होता है उसका स्पीड भी ज्यादा होता है। हायर द आयोनिक मोबिलिटी, higher is the speed of the ion in the aqueous solution। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे मार्क करना चाहिए आप लोगों को। यहाँ पे आएगा लिथियम और सीजियम में किसका आयोनिक मोबिलिटी ज्यादा है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे लिथियम का जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर था हम लोगों ने देखा था, ये जो यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड हो सकता है, हो रहा है यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल, यहाँ पे 3 4 5 और यहाँ पे 6, ये जो आपका यहाँ पे ऐड हो रहा है इसके लिए क्या होता है, ये बाल्की हो जाता है, ज्यादा बड़ा हो जाता है, ये बाल्की हो जाता है, दिस बिकम्स बाल्की। अभी क्या होता है, सीजियम का जो है साइज ज्यादा होने के कारण इसमें वाटर मॉलिक्यूल कम ऐड होता है, तो इसका जो साइज है ये लेस बल्की होता है। क्या होता है, लेस बल्की। आप लोग जानते हैं बल्की बॉडी मूव स्लोली, बल्की बॉडी मूव स्लोली। तो यहाँ पे देखेंगे दिस विल मूव स्लोली, दिस मूव स्लोली बिकॉज इसका जो साइज है वो ज्यादा बड़ा है, बल्की है ज्यादा, ठीक है। ये वाटर में धीरे धीरे मूव करेगा, ये वाटर में फास्ट मूव करेगा, इसमें फास्ट मूव करेगा, इसमें धीरे धीरे मूव करेगा। तो आप लोगों को बताना चाहिए सीजियम इज द हाईएस्ट आयनिक मोबिलिटी, देन आपका हो गया रुबिडियम, देन हो गया पोटेशियम, देन हो गया सोडियम, देन हो गया लिथियम। ये कौन सा वाले फेज में है, एक्वास फेज में। फिर से बता रहा हूं, हम लोगों ने देखा है जो लिथियम जो है इसका हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी के कारण ये क्या करता है, एक स्टेबल और बाल्की हाइड्रेटेड स्फीयर यहाँ पे बनाता है। जो बाल्की हाइड्रेटेड स्फीयर होता है वो क्या होता है, वो वाटर में धीरे से मूव करता है, दिस मूव स्लोली। लेकिन जो आपका सीजियम है ये ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए इसके साइज के कारण इसमें बहुत कम वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड हो सकता है। तो होने के बाद क्या होगा, लेस बल्की होगा, तो ये धीरे से नहीं, ये फास्ट मूव करता है। तो एक्वास फेज में क्या होता है, सीजियम हैज द हाईएस्ट आयनिक मोबिलिटी एंड लिथियम हैज द लोएस्ट आयनिक मोबिलिटी। और नॉन एक्वास फेज, जिसमें कोई नॉन एक्वास फेज में क्या होता है, जो मोल्टेन फेज होता है, मोल्टेन फेज, और इसको बोलते हैं फ्यूज्ड स्टेट। इसमें क्या होता है, लिथियम का जो है हाईएस्ट होता है, उसके बाद में होता है सोडियम, उसके बाद में पोटेशियम, उसके बाद में रुबिडियम, उसके बाद में सीजियम। इसमें क्या होता है, अभी आपको यहाँ पे वाटर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें यहाँ पे हाइड्रेशन स्फीयर के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, सिर्फ बताया गया है लिथियम और सीजियम के बीच में कौन सा वाला ज्यादा फास्ट मूव करेगा। लिथियम का साइज देखिए, यहाँ पे वाटर का कोई जरूरत नहीं है, लिथियम का साइज देखिए, उसके साइज के कारण ये जल्दी से मूव कर सकता है नॉन एक्वास फेज में। तो ये जो आयनिक मोबिलिटी का जो ट्रेंड है वो आपका एक्वास मीडियम में एक तरीके से होगा और नॉन एक्वास और मोल्टन कंडीशन में दूसरी तरीके से होगा। तो ये गया हमारा आयनिक मोबिलिटी के बारे में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसका देखेंगे इसका देखेंगे हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ग्रुप 1। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ग्रुप 1, रिडक्शन पोटेंशियल को हम लोग कहाँ पे यहाँ पे जान सकते हैं, वो आपका रेडॉक्स के चैप्टर जो है इसमें आपका एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम लोगों ने रेडॉक्स में पढ़ा है इसको। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है, हम लोग को ये यहाँ पे पता चल जाएगा। E0 हम लोग एक दो एग्जांपल लिख रहे हैं यहाँ पे, Zn2 + Zn, इसका जो वैल्यू है -0.76 वोल्ट। यहाँ पे जो E0 आपका लिथियम का जो है Li+2Li, ये हो गया -3.05 वोल्ट। और सोडियम का जो है मुझे शायद पता नहीं है कितना है, एग्जैक्टली तो नहीं पता है, Na+Na, इसका होता है -2 समथिंग 2.05 वोल्ट सपोज मान लीजिए। तो इसमें क्या होता है, इसका एक थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट भी है, वो भी हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा। आप लोग को याद रखना है, लोअर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, हायर इज द रिड्यूसिंग पावर, हायर इज द रिड्यूसिंग पावर and lower is the
ऑक्सीडाइजिंग नेचर, यहाँ पे आपको यहाँ पे ये तीनों में आपको दिख रहा होगा, जो वैल्यू जिसका ज्यादा कम है उसका रिडक्शन पावर जितना ज्यादा है, और इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड, दे themselves get ऑक्सीडाइज्ड। ओके, इसको आपको यहाँ पे देखना होगा। देखिए ये जो तीन यहाँ पे है, जिंक, लिथियम और सोडियम, इसमें देखेंगे आप लोग, ये जो लिथियम का जो वैल्यू है ये -3.05 है, इसमें जो है -2.05 है, इसमें है -0.76। तो हम लोग देख रहे हैं इसमें से सबसे कम कौन सा वाला वैल्यू है, लिथियम का वैल्यू है। इनफैक्ट lithium is the most strong reducing agent in group number 1। reducing agent कौन सा वाला है, lithium is the best reducing agent in the group 1। ये आपको कैसे पता चलेगा, देखिए यहाँ पे -3.05 है, जो वैल्यू इसका लोएस्ट है पूरा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे, होल पीरियोडिक टेबल, ग्रुप 1 नॉट ग्रुप 1, इन द पीरियोडिक टेबल देखेंगे आप, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिथियम का वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव है, तो इसका रिडक्शन पावर जो है वो ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, इज द मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, मोस्ट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये यहाँ पे एक आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन और लॉजिक में एक यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, सीजियम का साइज देखिए, दिस इज द साइज ऑफ द सीजियम एंड द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट हियर, एंड दिस इज द साइज ऑफ द लिथियम एंड द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट हियर। तो आप लोग देखेंगे सीजियम से ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है, तो ये सीजियम इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो इसका इट शुड हैव हाईएस्ट रिड्यूसिंग नेचर। बट लिथियम का देखिए यहाँ पे साइज जो है, यहाँ पे जो साइज है बहुत छोटा है, तो जो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लिथियम के न्यूक्लियस के बहुत ही पास रहेगा, तो इट शुड हैव लोएस्ट रिड्यूसिंग पावर। बट यहाँ पे हम लोग ने क्या पढ़ा है, हम लोग ने पढ़ा है लिथियम हैज द हाईएस्ट रिड्यूसिंग नेचर। ये क्यों हुआ, इसके लिए सिर्फ एक ही यहाँ पे चीज यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल है, वो है आपका यहाँ पे हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसका जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है, इसके लिए इसका जो एक्वस कंडीशन में इसको इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में आसानी होता है, इसीलिए हाइड्रेशन एंथैल्पी इज हाईएस्ट, दैट्स व्हाई इसका रिड्यूसिंग नेचर जो है वो हाईएस्ट होता है। ये आपको याद रखना है। लॉजिकली cesium should has the highest reducing power as the size of the cesium is large and the electron is present that can easily be released, but lithium has a smaller size, that's why इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बहुत पास में होता है, ये itself should not release the electron, but इसका जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो हाईएस्ट होने के कारण ये जो एक्वस फेज में हम लोग इसको देखते हैं, इसका रिडक्शन पावर और रिड्यूसिंग पावर ये हाईएस्ट होता है। तो आप लोगों को यहाँ पे जानना होगा लिथियम, उसके बाद होता है सीजियम, उसके बाद होता है आपका नॉर्मल ट्रेंड रोबिडियम, पोटेशियम, जोडियम। लिथियम हाईएस्ट है किसके लिए, इसका हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी के कारण, हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी के कारण इसका रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा है। ठीक है, तो ये है हमारा रिड्यूसिंग नेचर के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे द रिएक्टिविटी विथ वाटर एंड ऑक्सीजन। ये हम लोगों ने पहले इसका फिजिकल प्रॉपर्टी लिखा था, वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। द रिएक्टिविटी विथ वाटर, हम लोगों ने पढ़ा है ये कि व्हाइल यू गो डाउन द ग्रुप, द आयोनिक नेचर increases and the reactivity also increases। इसमें एक बात है,
देखेंगे हम लोग, ये आपका इसमें भी होता है, आपका जो ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 में जो है इसमें क्या होता है, इसमें भी ऐसा ही होता है, बेरिलियम, उसके बाद होता है आपका मैग्नीशियम, उसके बाद होता है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ये जो है बेरियम एंड स्ट्रोंशियम react with any kind of water, cold water also. मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है इसको वार्म वाटर की जरूरत है, इसको भी आपका वार्म वाटर में भी ये जनरली रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन कुछ एक्साइटेड कंडीशन में और कुछ कैटलिस्ट के मदद से ये भी आपका रिएक्शन में टेक पार्ट कर सकता है। अच्छा, बेरिलियम का जो है ऑक्सीजन के साथ में और आपका वाटर के साथ में ये जनरली रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे आयनिक नेचर, देखिए द रिएक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस, बट थर्मोडायनेमिक्स जो है इस बात का परमिशन नहीं देता है। क्या होता है आप देखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिथियम और सोडियम के बारे में देखते हैं। लिथियम का जो यहाँ पे E0 सेल का जो वैल्यू है, E0 Li+2 Li, इसका वैल्यू है -3.05 वोल्ट, और E0 आपका यहाँ पे Na जो है इसका वैल्यू है -2.05 वोल्ट। आप दोनों का डेल्टा जी निकाल लीजिए, इसका डेल्टा जी निकालेंगे, डेल्टा जी ऑफ लिथियम ये हो गया -N/F/E0 सेल, ये है आपका फॉर्मूला, इसको बोलते हैं गिब्स इक्वेशन। माइनस के साथ में माइनस बिठा देंगे, n क्या है +1 से 0 में आया है, तो यहाँ पे होगा n का वैल्यू 1 है, f का वैल्यू फैराडेज कांस्टेंट 96500, E0 सेल का वैल्यू क्या है -3.05, ये होगा आपका वैल्यू कौन सा, यह लिथियम का। सोडियम का यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा जी इज इक्वल्स टू -n के, यहाँ पे n हो गया 96500, और E0 सेल का जो वैल्यू है -2.05, इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, देखेंगे यहाँ पे लिथियम जो है, lithium releases highest energy but ये स्टार पॉइंट है, but the reaction is mild। देखिए आप लोग लिथियम को वाटर में डालेंगे तो इसका जो रिएक्शन है बहुत ही स्लो होगा। आप देखेंगे जो वाटर है वो सिर्फ वार्म होता है। आप लोग यहाँ पे सोडियम पोटेशियम को डालेंगे, देखेंगे यहाँ पे विगोरस रिएक्शन हो रहा है। रुबिडियम को यहाँ पे वाटर में डालेंगे तो इसमें ज्यादा और ज्यादा विगोरस रिएक्शन होगा। सीजियम को डालेंगे तो वाटर में यहाँ पे दिस विल कैच फायर, ओके। बट द प्रॉब्लम इज दैट आपका थर्मोडायनेमिक्स जो है वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है। यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स क्या बोल रहा है, लिथियम शुड रिलीज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लिथियम शुड डेफिनेटली रिलीज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, बट इसका रिएक्शन स्लो क्यों है और इसका माइल्ड क्यों है रिएक्शन? माइल्ड इसलिए है, एक लिथियम का वाटर के साथ में रिएक्शन करने के बाद जो एनर्जी यहाँ पे निकलता है, वो जो एनर्जी है वो दूसरा लिथियम को मेल्ट करने में खर्चा हो जाता है और स्पेंड हो जाता है। आपका लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे हाईएस्ट है इस ग्रुप में। ग्रुप नंबर 1 में लिथियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाईएस्ट है, और सीजियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लोएस्ट है। तो आप लोग देखेंगे सीजियम से जितना एनर्जी यहाँ पे निकलेगा ये पूरा का पूरा निकल जाएगा, बिकॉज सीजियम को आपका दूसरे एटम को मेल्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही मेल्ट हो सकता है आपका रूम टेम्परेचर में। लेकिन लिथियम का जो है वो रूम टेम्परेचर में मेल्ट नहीं होता, तो आपका जो एनर्जी यहाँ पे निकलेगा उसका मैक्सिमम जो पार्ट है और पोर्शन है वो आपको खर्चा हो जाएगा लिथियम को मेल्ट करने में, ठीक है। तो इसको एक हम लोग डिटेल्स में समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक लिथियम है और एक सोडियम है सपोज, और एक सीजियम ले लीजिए, सीजियम। सपोज लिथियम से यहाँ पे वाटर के साथ में रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे एनर्जी निकला है आपका 500 किलो जूल, 500 किलो जूल यहाँ पे एनर्जी आपको यहाँ पे निकल गया, ये एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है। और आपका जो लिथियम एटम है, दूसरा वाला जो लिथियम एटम है, इसको मेल्ट करने के लिए खर्चा हो रहा है आपका सपोज मान लीजिए 400 किलो जूल, ठीक है। तो क्या होगा आपका रिजल्टेंट क्या है, 500 यहाँ पे रिलीज हो रहा है, यहाँ पे आपका 400 यहाँ पे घट रहा है, तो एनर्जी जो निकलेगा वो होगा आपका 100 किलो जूल। आप सीजियम को देखिए, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा आपका 400 किलो जूल सपोज मान लीजिए, तो यहाँ पे आपका खर्चा होगा 0, तो आपका टोटल एनर्जी कितना निकलेगा 400 किलो जूल। तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे, दो इट इज रिलीजिंग लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी बट द रिजल्टेंट इज हाई, बिकॉज इसको आपका और एक सीजियम एटम को मेल्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, सीजियम आपका रूम टेम्परेचर में इजीली आपको यहाँ पे मेल्ट हो जा रहा है। तो ये है आपका
reason why the reaction of water with lithium is mild but in cesium is highest, though thermodynamics predict the opposite. thermodynamics क्या बोल रहा है, लिथियम से हाईएस्ट एनर्जी रिलीज होने के बाद है, यहाँ से हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी ही रिलीज होता है, लेकिन यहाँ पे दूसरा लिथियम एटम को इसको आपको मेल्ट करना पड़ता है, इसीलिए इसका एनर्जी जो है वो ज्यादा एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे हम लोग इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका आईपी। आईपी बहुत ही इजी है। आईपी जो जिन लोगों को पता नहीं है, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। जो यहाँ पे आपका जो एलिमेंट आप लोगों को यहाँ पे मिलता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। आप लोग जानते हैं लिथियम का साइज से स्मॉलर, उसका ज्यादा बड़ा, इसका ज्यादा बड़ा, सीजियम बहुत ज्यादा बड़ा है। तो इसलिए क्या होता है, व्हाइल गोइंग डाउन द आईपी डिक्रीजेस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लिथियम का साइज छोटा होने के कारण यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा ना, तो इसके लिए आपको प्रॉब्लम होगा। क्यों प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसका साइज छोटा है, इसमें अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन सीजियम का साइज बड़ा होने के कारण क्या होता है, इसमें जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से इजीली यहाँ पे निकल जाएगा। तो इसका जो आईपी है वो है लोएस्ट, इसका जो आईपी है इसका है हाईएस्ट अमंग ऑल ऑफ देम। तो आईपी किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, आईपी डिपेंड करता है आपका जेड इफेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है, और साइज के ऊपर डिपेंड करता है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये जो आपका सीजियम है इसका साइज ज्यादा होने के कारण ये क्या करता है, इसका जो टेंडेंसी है टू लूज एन इलेक्ट्रॉन, ये इजीली एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज कर सकता है। तो इसका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है हाईएस्ट है, तो यहाँ से आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हो। तो ये है आपका आईपी का कॉन्सेप्ट। जितना आप नीचे जाओगे ग्रुप नंबर 1 में, इतना आपका आईपी जो है वो लो हो जाएगा। अभी इसका आईपी है लोएस्ट, इसका आईपी आयनाइजेशन पोटेंशियल इज लोएस्ट। तो इसमें क्या होता है, इट इज यूज्ड इन द फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। आईपी लो होने के कारण सीजियम जो है इसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में यूज करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, इसको फोटो इलेक्ट्रिक सेल के साथ साथ फोटोवोल्टिक सेल भी यहाँ पे बोल सकते हैं। तो आईपी के बारे में और थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। देखिए आप लोग, जो ग्रुप नंबर 1 है और ग्रुप नंबर 2 है, आईपी तो इंक्रीज करेगा, आईपी तो डिक्रीज करेगा ऊपर से नीचे जाने के वक्त, लेकिन एक प्रॉब्लम है, इनका जो सेकेंड आईपी है IP2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन IP1, और इसका जो IP1 है इज ऑलवेज ग्रेटर देन IP2। ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, आप लोग देखेंगे सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 और 1, इसका जो बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है इसको ये इजीली रिलीज करेगा, बिकॉज इट वांट्स ऑक्टेट। ऑक्टेट के लिए क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इसको यहाँ पे रिलीज कर देगा। ठीक है, तो ये पहला इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद सोडियम के ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा, और इसमें क्या होगा 2 और 8 हो जाएगा। यहाँ पे जो है देखिए आप लोग, इसका ऑक्टेट जो है वो सेटिस्फाइड है, और ये स्टेबल है। क्या है, स्टेबल है। आप लोग अब दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालने जाओगे, अगर इसको आप लोग 2 और 7 में कन्वर्ट करने के लिए जाओगे, Na2+ बनाने चाहते हो आप लोग, तो ये जो है ये है अनस्टेबल। तो अनस्टेबल होने के बाद क्या होता है, अनस्टेबल कोई भी आप स्टेबल फॉर्म से अनस्टेबल बनाना चाहोगे तो आपको नेचर के ऑपोजिट काम करना पड़ेगा। इसीलिए आपको यहाँ पे एनर्जी जो है वो आपको ज्यादा यहाँ पे देना पड़ेगा। इसीलिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तो क्या होगा, आपको तकलीफ होगी, यू शुड फेस डिफिकल्टीज। तो IP2 इज ग्रेटर देन द IP1। ये है आपका ग्रुप 1 के बारे में। और ग्रुप 2 में क्या होता है, आप लोग देखेंगे यहाँ पे हम लोग मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख लेते हैं 282। अब देखेंगे पहले जो है, ये जो है आपका S ब्लॉक जो है, इसका जो S ब्लॉक है हम लोग लिखेंगे इसको 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है
कि किसी भी ऑर्बिटल जब आपका फुलफिल्ड होता है वो होता है आपका स्टेबल स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसमें से आप एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज करना चाहते हो, तो इसमें से आपको एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करना चाहते हो तो इसको अनस्टेबल बनाना पड़ेगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, 3s1 बनाना पड़ेगा। ये जो अनस्टेबल है इसीलिए आपको यहाँ पे एनर्जी ज्यादा लगता है। अभी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकाल लिए, 281 हो गया, तो आपको यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि ये निकालने के बाद इसका जो ऑक्टेट है वो यहाँ पे आपका हो जाएगा स्टेबल। फिर से बता रहा हूं, देखिए मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 282 है, तो हम लोग इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2। तो हम लोग देख रहे हैं ये जो 3s2 का जो ऑर्बिटल है वो स्टेबल है, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। 2 इलेक्ट्रॉन होने से क्या होता है, ये जो आपका फुलफिल्ड कंडीशन में है तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है। स्टेबल कंपाउंड से आप लोग अनस्टेबल बनाना चाहते हो 3s1, तो इसमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगा। अभी देखेंगे आप लोग, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है वो इजीली यहाँ पे रिलीज कर देगा, क्योंकि रिलीज करने के बाद ये स्टेबल हो जाएगा, इसका ऑक्टेट जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो सेकेंड आईपी है वो यहाँ पे लो होता है और आपका जो फर्स्ट आईपी है वो यहाँ पे होता है हाई। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ IP1 एंड IP2 इन बोथ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। और आपको याद रखना है, जब भी किसी ग्रुप में आप लोग जाओगे ऊपर से नीचे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आप लोग देखेंगे उसका जो आईपी है आयनाइजेशन पोटेंशियल ये कॉन्टिन्यूअसली आपका डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा आईपी का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, इस ग्रुप के ग्रुप 1 और ग्रुप 1 के केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग पहले देखेंगे ऑक्साइड्स, उसके बाद देखेंगे हैलाइड्स, उसके बाद देखेंगे हाइड्राइड्स, उसके बाद देखेंगे हम लोग इसका क्या देखेंगे, इसके बाद देखेंगे हम लोग इसका ऑक्साइड हो गया, हैलाइड हो गया, हाइड्राइड हो गया, उसके बाद देखेंगे क्या देखना है, कार्बोनेट हो गया, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एटसेट्रा। तो पहले देख ले हम लोग ऑक्साइड्स। ये जो ग्रुप 1 है ये आपका डिफरेंट टाइप का कलरफुल ऑक्साइड यहाँ पे बना सकता है। एज एन एग्जांपल आप लोगों को हम लोग दिखा रहे हैं, देखिए ऑक्साइड जो है, लिथियम जो है वो आपका नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, नॉर्मल ऑक्साइड, जैसे कि आपका Li2O हो गया। सोडियम जो है ये आपका बनाता है, नॉर्मल ऑक्साइड भी बनाता है Na2O, और इसका पारऑक्साइड भी बनाता है NO2O2, इसको बोलते हैं आप लोग पारऑक्साइड। उसके बाद जो है पारऑक्साइड के साथ में Na जो है, और पोटेशियम जो है वो आपका बनाता है पारऑक्साइड और बनाता है सुपर ऑक्साइड, इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। इसमें पोटेशियम जो है एक और भी ऑक्साइड यहाँ पे निकाल सकता है KO3, जिसमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है -1/3, इसमें होता है -½ पारऑक्साइड में -1। सीजियम जो है वो जनरली आपका CsO2 सीजियम सुपर ऑक्साइड बनाता है ऑरेंज येलो कलर का। अभी प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्यों होता है ऐसा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। इसका रीजन जो है इसको आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा। देखिए ये लिथियम का जो साइज है ये बहुत ही छोटा है। अभी यहाँ पे जो ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज है, चार्ज तो आप लोग जानते हैं इसमें लोन पेयर भी है और इसका नेगेटिव चार्ज है। वो जो चार्ज है ऑक्सीजन का, वो चार्ज जो है वो 2 लिथियम एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इसमें स्टेबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज होता है। अच्छी तरीके से समझिएगा इस बात को। अगर आपका एनायन का चार्ज कैटायन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो जो कंपाउंड होता है वो यहाँ पे स्टेबल होता है। जैसे कि आपका Li2O है, इसमें आपका एक ऑक्सीजन है और 2 लिथियम है। लिथियम का साइज छोटा है, लेकिन 2 लिथियम होने से ये जो ऑक्सीजन के ऊपर का जो चार्ज है वो यहाँ पे यूनिफॉर्मली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए Li2O का स्टेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा होता है। अब सोडियम में देखेंगे ये नॉर्मल ऑक्साइड कम बनाता है लेकिन पारऑक्साइड ज्यादा बनाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन का ऊपर जो चार्ज होता है इसके लिए 2 सोडियम के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, क्योंकि सोडियम का साइज जो है
वो आपका लिथियम से ज्यादा है। अभी देखेंगे सीजियम। सीजियम सुपर ऑक्साइड बनाता है क्योंकि सीजियम का साइज बहुत ही लार्ज है। ये 2 ऑक्सीजन का चार्ज एक सीजियम एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो जितना बड़ा साइज होगा एटम का, वो उसका आपका सुपर ऑक्साइड बनाने का टेंडेंसी जो है वो ज्यादा होगा। इसीलिए ग्रुप 1 में जो लोअर एलिमेंट्स है, जैसे कि आपका सीजियम, पोटेशियम और रुबिडियम, उनका जो है सुपर ऑक्साइड बनाने का टेंडेंसी ज्यादा है, और नॉर्मल ऑक्साइड और पैरोक्साइड बनाने का टेंडेंसी यहाँ पे आपका कम है। तो इसको याद रखना है। ऑक्साइड का जो है, ये आपको याद रखना है, ऑक्साइड का आपका लिथियम जो है नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, Li2 इज एक्सट्रीमली स्टेबल। उसके बाद सोडियम जो है ये सुपर नॉर्मल ऑक्साइड और पैरोक्साइड बोथ यहाँ पे बनाता है। पोटेशियम जो है ये पैरोक्साइड सुपर ऑक्साइड बोथ यहाँ पे बनाता है। सीजियम जो है और रुबिडियम जो है वो जनरली सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, इसका कारण मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो फिर से एक बार सुनिएगा, जरूर समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका हैलाइड्स। हैलाइड्स में क्या है, ये लोग आप लोग को ये जो LiCl है, NaCl, इसको होता है तो आपका KCl, RbCl, CSCl। आप लोग देखेंगे ये सारे के सारे आपके आयोनिक हैलाइड्स है। Some of them are completely soluble in water. Maximum of them. Max of them are completely soluble in water. एग्जाम्पल हो गया, आप ये चारों आपका एक्सट्रीमली सोल्यूबल है, और लिथियम क्लोराइड जो है वो स्पेरिंगली सोल्यूबल है। स्पेरिंगली मतलब इसका आपका स्पेरिंगली सोल्यूबल मींस पार्शियली सोल्यूबल। इसका एग्जांपल मैं आपको कैसे दे सकता हूं। अब देखिए, इसका लिथियम का जो साइज है, इसका साइज छोटा है, उसके ऊपर प्लस चार्ज है। क्लोरीन का जो साइज है बड़ा है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है। इसमें फाजांस रूल हम लोगों ने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? फाजांस रूल। ये फाजांस रूल में हम लोगों ने पढ़ा है कैटायन का साइज जितना छोटा होगा, इसका आप लोगों का पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा। कैटायन का साइज जितना छोटा होगा, पोलराइजेशन इतना ज्यादा होगा, इसीलिए इसमें कोवेलेंट नेचर इतना ज्यादा होगा, कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा। फिर से समझिए, लिथियम का जो साइज है वो छोटा है, उसके ऊपर प्लस चार्ज है, 1 यूनिट प्लस चार्ज। इसके लिए इसका जो पोलराइजेशन है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टर्शन करने का जो क्षमता है वो यहाँ पे ज्यादा होता है, इसलिए ये जो ज्यादा कोवेलेंट होता है। सीजियम का साइज जो है इतना बड़ा है और क्लोरीन का साइज जो है इतना है, तो इसलिए इसका ऊपर जो प्लस चार्ज है इसको ज्यादा पोलराइज नहीं कर सकता। ठीक है, तो पोलराइजेशन जो है फाजांस रूल में हम लोगों ने पढ़ा है, लार्जर द साइज ऑफ द कैटायन लेस विल बी द पोलराइजिंग पावर, स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन हायर विल बी द पोलराइजिंग पावर। इसमें लिथियम का साइज जो है स्मॉलेस्ट है, इसीलिए इसका जो पोलराइजेशन पावर है वो हाईएस्ट होता है, और इसका कोवेलेंट नेचर जो है लिथियम क्लोराइड का हाईएस्ट होता है, और वाटर में ये आपका स्पेरिंगली सोलुबल है। सीजियम का जो साइज है ज्यादा होता है, इसीलिए इसमें आपका पोलराइजेशन भी कम होता है। इसका आयनिक नेचर इज हाईएस्ट, दैट्स व्हाई इसका जो आयनिक नेचर हाईएस्ट होता है, इसीलिए आपको वाटर में ज्यादा सोल्यूबल होगा। ठीक है, तो द सोल्युबिलिटी ऑफ द हैलाइड्स इन द वाटर डिपेंड अपॉन द पोलराइजेशन पावर ऑफ द कैटायंस। ओके, इसीलिए सीजियम क्लोराइड इज हाईली सोल्युबल इन वाटर एंड लिथियम क्लोराइड इज लेस सोल्युबल इन वाटर। ये दूसरा तरीके का कंपाउंड भी बना सकता है, लिथियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, रुबिडियम आयोडाइड, सीजियम आयोडाइड एटसेट्रा, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हैलाइड, ये सब आयोनिक है, लेकिन इनमें से कुछ है जो स्पेरिंगली सोल्यूबल है, कॉम्प्लीटली आयोनिक नहीं है। इसमें थोड़ा सा कोवेलेंट नेचर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अभी उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका हाइड्राइड। हाइड्राइड किसको बुलाते हैं? हाइड्राइड बुलाते हैं हाइड्रोजन व्हेन इज इन द -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। हाइड्रोजन इज व्हेन इन द H- स्टेट, H के ऊपर माइनस होगा, H- स्टेट में, इसको बोलते हैं आपका हाइड्राइड। जैसे कि आपका लिथियम हाइड्राइड हो गया, जैसे कि सोडियम हाइड्राइड हो गया, पोटेशियम हाइड्राइड हो गया, रुबिडियम हाइड्राइड हो गया, सीजियम हाइड्राइड हो गया, ये है आपका हाइड्राइड।
इसमें देखेंगे इसमें Li प्लस H माइनस है, इसमें Na प्लस H माइनस है, इसमें पोटेशियम प्लस H माइनस है, इसमें Rb प्लस H माइनस है। ये आपका आयनिक हाइड्राइड है, आयोनिक हाइड्राइड। अब आप लोग पूछेंगे आयोनिक हाइड्राइड क्या होता है। आप कोवलेंट हाइड्राइड भी देख लीजिए, जैसे कि आपका ये नाइट्रोजन का हाइड्राइड है एमोनिया, ठीक है। ये सल्फर का हाइड्राइड है H2S, ठीक है। ये वाटर का हाइड्राइड है आपका H2O। इसमें देखेंगे हम लोग ये जो कोवलेंट हाइड्राइड है, इसमें हाइड्रोजन जो है ये आपके कोवलेंट बॉन्ड में यहाँ पे आपको मिल जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड में ये आपको अटैच कंडीशन में मिल जाएगा। लेकिन जो आयनिक हाइड्राइड है इसमें H माइनस मिलेगा आपको, ये आयनिक फॉर्म में होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं आयनिक हाइड्राइड। तो हाइड्राइड दो तरीके का हो सकता है, आपका कोवलेंट हाइड्राइड भी हो सकता है, आपका आयनिक हाइड्राइड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो आपको याद रखना है, ये जो आपका मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है ना, ये ग्रुप 1 हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इसीलिए ये हाइड्रोजन का माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट यूज कर सकता है। तो ये है आपका आयोनिक हाइड्राइड। ये हाइड्राइड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये हाइड्राइड का बहुत सारा एग्जांपल होता है, जैसे कि आपका LiH, NaH एटसेट्रा, ये जो है ये आपका बेस के साथ बेस की तरह काम करता है, बेस की तरह। जैसे कि एक एग्जांपल आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये जो एग्जांपल है इसमें देखेंगे हम लोग ये कंपाउंड है, इसमें हम लोगों ने एक LiH दिया है लिथियम हाइड्राइड, इसके साथ में हम लोगों ने CH3Cl। दे आर गुड हाइड्रोजनेटिंग एजेंट एंड कैन एक्ट एज बेस। अब देखेंगे लिथियम हाइड्राइड का स्मॉलर साइज है, जो ये क्या करेगा, H माइनस जो है ये चाहता क्या है, ये चाहता है आपका H प्लस, ये क्या बनाएगा, H बनाएगा आपका H2। तो ये क्या करेगा, जो मोर स्टेरिकली हिंडर्ड जो पोजीशन है, देखेंगे आप लोग यहाँ पे कोई CH3 नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक CH3 है। ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे है इसको आप लोगों को यहाँ से निकाल के ले जाएगा ये, तो जो स्ट्रक्चर है ये आपका ऐसे हो जाएगा, ये CH3 ए माइनस चार्ज, इसके साथ में हम लोग CH3Cl देंगे, तो इसमें एक SN2 रिएक्शन होगा, तो आपका जो प्रोडक्ट निकल के आएगा ये डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पे एक CH3 है। तो हम लोग देखेंगे, देख रहे हैं कि ये जो हाइड्राइड है ये आपका बेस की तरह भी काम कर सकता है, सोडियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड एटसेट्रा, और ये H माइनस ट्रांसफर भी कर सकता है। तो ये जो हाइड्राइड है इसको बोलते हैं हम लोग आयनिक हाइड्राइड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट में जो है जो Li2CO3, Na2CO3, इसमें होता है K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, Rb2CO3, CS2CO3। अभी देखेंगे जो मेल्टिंग पॉइंट है कार्बोनेट का, MP जो है मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज होता है, इसका जो ऊपर से नीचे जाएंगे आप लोग, इसका आयोनिक नेचर इंक्रीज हो जाता है, आयोनिक नेचर इंक्रीजेस। तो हम लोग जानते हैं कि जो आयोनिक कंपाउंड है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो आप लोगों को कोई पूछे कि इसमें से कौन सा हाईएस्ट आयोनिक नेचर है, इसको आप लोगों को बताना पड़ेगा सीजियम कार्बोनेट हैज द हाईएस्ट आयोनिक नेचर एंड लिथियम कार्बोनेट हैज द लोएस्ट आयोनिक नेचर, दैट्स व्हाई लिथियम कार्बोनेट हैज a higher has a lower melting point, lower MP and low decomposition temperature। ये जो है लो डिकम्पोजिशन टेम्परेचर में होता है, तो इसको आपको याद रखना है क्योंकि इसका कोवलेंट नेचर ज्यादा है, इसीलिए इसको इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो यहाँ पे कम होता है। और दूसरा बात है जनरली ये सोल्यूबल होता है, जितना ऊपर से आप लोग नीचे जाओगे आयनिक नेचर इंक्रीज होता है एंड सोल्युबिलिटी आल्सो इंक्रीजेस इन वाटर, सोल्युबिलिटी आल्सो इंक्रीजेस
इन वाटर। लिथियम कार्बोनेट जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है वो एयरक्राफ्ट में, सॉरी स्पेस क्राफ्ट में प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लिथियम हाइड्रोक्साइड के साथ में यहाँ पे रिएक्शन करने के बाद ये लिथियम कार्बोनेट भी बनाता है, Li2CO3। ठीक है, लिथियम कैसे करता है इसको, लिथियम हाइड्रोक्साइड का जो सेल है वो आपको यार स्पेसक्राफ्ट में यूज करते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है वो लिथियम कार्बोनेट के तरीके से वहां पे स्टोर हो जाता है। ठीक है, सोडियम भी ऐसा कर सकता है, पोटेशियम भी कर सकता है। जैसे कि आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है तो यहाँ पे K2CO3 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में इसका CO2 का रिएक्शन होने से Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे जनरेट होगा। सोडियम कार्बोनेट का बहुत सारा यूज है, इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं ये हम लोग देखेंगे। सॉल्वे प्रोसेस में यूज करता है, प्रोड्यूस करता है इसको। सोडियम कार्बोनेट कैसे प्रोड्यूस करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 73% जो आपका सोडियम कार्बोनेट आप लोग यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं, इंडस्ट्री में यूज करते हैं, वो आपका अभी भी इतना सारा एडवांटेज और मॉडर्न एप्लीकेशन के बाद भी आप लोगों को सॉल्वे प्रोसेस में 73% यूज होता है, प्रोड्यूस होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को हम लोग फ्यूजन टेस्ट में भी यूज कर सकते हैं और हम लोग इसको फ्यूजन रिएक्शन में भी यूज कर सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट को देखेंगे हम लोग, इसको हम लोग डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे। Na2CO3 के साथ में आप लोग HCl यूज करेंगे तो इसमें NaCl प्रोड्यूस होगा, प्लस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। ठीक है, बबल्स के साथ में एक टेस्ट ट्यूब लेंगे हम लोग, इसमें हम लोग यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का एक्वा सॉल्यूशन ले लिया है और इसमें HCl डालने से आप लोगों को पता चलेगा यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का ब्रिस्क इफरवेसेंस जो है वहां पे निकल के आएगा। और जो बाइकार्बोनेट का है वो भी ऐसा ही है। बाइकार्बोनेट में भी क्या होता है, ऊपर से नीचे के जाने के बाद इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होता है, सोलुबिलिटी जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। उसके बाद है नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स जो है बहुत ही सोल्यूबल होता है वाटर में। नाइट्रेट्स जो है वो हाईली सोल्यूबल होता है वाटर में, जैसे कि आपका लिथियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, रुबिडियम नाइट्रेट, सीजियम नाइट्रेट। क्या होता है, इसका जो सोल्यूबिलिटी है इंक्रीसेस, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। इसका एक ही रीजन है जो आयनिक नेचर है। आयनिक नेचर जो है इसके लिए ये आपका ज्यादा सोल्यूबल होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होते हैं। इसमें एक बात यहाँ पे याद रखना है आपको, ये जो लिथियम नाइट्रेट है ये एनोमेलास बिहेवियर शो करता है। एनोमेलास क्या होता है, आप सोडियम नाइट्रेट को हीट करोगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सॉरी यहाँ पे होगा NaNO2 प्लस यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ पे निकलेगा। ठीक है, अब लिथियम नाइट्रेट को हीट करोगे तो यहाँ पे एक डिफरेंट चीज होगा, Li2O NO2 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ये क्यों रिलीज करता है, इसका जो ऑक्सीजन के साथ में जो है बॉन्ड जो है वो स्टेबल है, क्योंकि इसका पोलराइजेशन जो है वो स्टेबल है, यहाँ पे हाईएस्ट है। इसीलिए ये क्या करता है, लिथियम नाइट्रेट को हीट करने के बाद ये आपका लिथियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। बाकी जो नाइट्रेट है वो आपका यहाँ पे नाइट्राइट प्रोड्यूस करता है और इसके साथ में एक ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज करता है वो लोग। ठीक है, तो ये जो लिथियम नाइट्रेट है वो डिफरेंटली बिहेव करता है, क्योंकि आपका ये जो स्टेबिलिटी है ऑक्साइड का। बाकी जो ऑक्साइड है हम लोगों ने क्या पढ़ा था नॉर्मल ऑक्साइड के बारे में। नॉर्मल ऑक्साइड का प्रोड्यूस करने के जो क्षमता है वो आपका ऊपर से नीचे जाने के समय इसको आपको डिक्रीज हो जाता है। तो इसलिए जो है लिथियम ऑक्साइड जो है नॉर्मल ऑक्साइड वो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए आप लोग इसको हीट करोगे लिथियम नाइट्रेट को, यहाँ से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगा और एक ऑक्सीजन यहाँ पे रह जाएगा। सो Li2 विल बी प्रोड्यूस्ड इन द हीटिंग ऑफ LiNO3। ठीक है, उसके बाद देखेंगे
अभी हम लोग जो देखेंगे इस चैप्टर के अंदर जाने से पहले और डिटेल्स में जाने से पहले, एक्चुअली हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में जो डिस्कस किया है हम लोग, उसी से पूरा का पूरा चैप्टर हो जाता है। लेकिन इसमें एक दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक है आपका लिथियम का एनोमलस प्रॉपर्टी जो है, एबनॉर्मल प्रॉपर्टी जो है, ये आपको जानना पड़ेगा। एबनॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम एंड एबनॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ बेरिलियम, ये हम लोग को यहाँ पे जानना पड़ेगा। तो हम लोग पहले लिथियम से शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पे लिथियम लिथियम के साथ में क्या होता है, एक नंबर जो है, इट इज द स्मॉलेस्ट इन देम, इट इज द स्मॉलेस्ट इन ग्रुप 1। नंबर 2 जो है, इट हैज हायर पोलराइजिंग पावर, and produces covalent compounds। नंबर 3 जो है, लिथियम कैन exhibit हाइड्रेट फॉर्म Li2O.2H2O, ठीक है। और LiCl, इसका क्लोराइड जो है वो आपका यहाँ पे LiCl.2H2O। बाकी का जो क्लोराइड है वो आप लोगों को यहाँ पे हाइड्रेट फॉर्म में नहीं दिखेगा, ठीक है। नंबर 4 जो है, इट हैज द हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर। इसका E0 वैल्यू कितना है, E0 वैल्यू है Li प्लस टू Li इज इक्वल टू -3.05 वोल्ट। 5 नंबर जो है, लिथियम विल नॉट टेक पार्ट इन फ्लेम टेस्ट। लिथियम विल नॉट टेक पार्ट इन फ्लेम टेस्ट। ये फ्लेम टेस्ट में नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? लिथियम का जो साइज है वो आपका स्मॉल है, इसीलिए उसका जो इलेक्ट्रॉन है इसका आईपी हाईएस्ट है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन में नहीं जाता है। ये जो इसका लिथियम हैज द हाईएस्ट आईपी। उसके बाद का जो पॉइंट है 7, लिथियम कार्बोनेट जो है Li2CO3, ये आपका कोवलेंट है, जनरली कोवलेंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो है, एमपी इज लो। जैसे कि आपका उसके बाद वाला पॉइंट है 8 नंबर पॉइंट, जैसे कि लिथियम generally forms normal oxides such as Li2O, but rest of them can produce superoxide and peroxide, superoxide and peroxide। जैसे कि आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है 9 नंबर पॉइंट जो है, लिथियम रिएक्ट्स माइल्डली with water, but rest of them react violently। नंबर 10 का जो पॉइंट है, लिथियम has the highest MP melting point of all of them in group 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, लिथियम हैज द हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी among all of them in group 1। ये हो गया हमारा जो लिथियम का एनोमलस प्रॉपर्टी है। दिस इज द एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम। तो हम लोगों ने पूरा का पूरा पॉइंट पहले ही डिस्कस कर लिया था फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में, वही यहाँ पे एक बार लिख के दिया है हम लोगों ने। तो ये है आपका लिथियम का एनोमलस प्रॉपर्टी, जो मैक्सिमम जो है हम लोग जानते ही है इसको, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है। और लिथियम नाइट्रेट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, Li2
sorry, LiNO3, lithium nitrate, gives us lithium oxide and nitrogen dioxide. Rest of the nitrates gives us LiNO2 plus O2. Okay, NaNO2, KNO2 प्लस O2 एटसेट्रा। अब देखेंगे जो नाइट्रेट है इसको हीट करने से यहाँ पे आपका नाइट्राइट निकलता है और यहाँ पे ऑक्सीजन निकलता है, तो इसको आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद में देखेंगे हम लोग बेरिलियम का जो प्रॉपर्टी है वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। बेरिलियम का एनोमलस प्रॉपर्टी, एक नंबर जो है, इट हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। नंबर 2 है द ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर एम्फोटेरिक। 3 नंबर पॉइंट जो है, डज नॉट रिएक्ट विथ oxygen generally, but in presence of high temperature in the powdered form in presence of some impurities burns brilliantly. Number 4 does not undergo flame test. ग्रुप 2 में बाकी सब फ्लेम टेस्ट में जाते हैं। नंबर 5 मैग्नीशियम के छोड़ के, नेवर रिएक्ट्स विथ वाटर cold or hot water. Number 6 has higher IP than all of them. Next, produces covalent compounds. Number 6, 7, 8 produces covalent compound. Show diagonal relationship with aluminum. ओके तो ये है आपका। इसके बाद जो है नंबर 9, पोलराइजिंग पावर इज हाई। तो ये जो है 9 पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। ये आपका बेरिलियम का एनोमलस प्रॉपर्टी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक। लिथियम और बेरिलियम का एनोमलस प्रॉपर्टी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आता है आपका एंट्रांस में। बेरिलियम हाइड्राइड जो है इकोवैलेंट, और बाकी जो हाइड्राइड है वो आयनिक होता है। ये जो स्ट्रक्चर आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ये हाइड्रोजन हाइड्रो बेरिलियम, यहाँ पे हाइड्रोजन है पॉलीमर के जैसे रहता है। बेरिलियम हाइड्राइड एक्ट एज ए पॉलीमर, ये आपको याद रखना है, आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा ये। ठीक है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी, इसका हाइड्रेटेड स्फीयर भी छोटा होता है, बड़ा होता है, और इसीलिए वो आपका ज्यादा यहाँ पे वाटर के साथ में ज्यादा रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन आप फोर्स करोगे कुछ रिएजेंट यूज करके, उसके बाद ये आपका रिएक्शन में जाएगा, लेकिन बहुत ही माइल्डली जाएगा। तो ये है हमारा बेरिलियम का एनोमलस प्रॉपर्टी, वो था आपका लिथियम का एनोमलस प्रॉपर्टी। अब क्या करेंगे आप लोग, ये पूरा जो मैंने यहाँ पे पूरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। जो बाकी प्रॉपर्टीज है वो भी सेम ही है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ डायगोनल रिलेशनशिप हम लोग को देखना है, हम लोग ये देखेंगे डायगोनल रिलेशनशिप। और उसके बाद में आप लोग पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से पढ़िए। आपका 100% जो है वो एंट्रेंस में इसका कॉमन ही आएगा क्वेश्चन, 100%।
अब देखेंगे यहाँ पे लिथियम और मैग्नीशियम, देखेंगे आप लोग ये डायगोनली प्रेजेंस है, और बेरिलियम और एल्यूमिनियम ये भी आपका डायगोनली प्रेजेंट है इन द पीरियोडिक टेबल। तो इसमें क्या होता है, लिथियम और मैग्नीशियम का कुछ प्रॉपर्टी में सिमिलरिटीज रहता है। जैसे कि आप लोग देखेंगे लिथियम और मैग्नीशियम, दे बोथ डू नॉट अंडरगो फ्लेम टेस्ट, बोथ डू नॉट अंडरगो फ्लेम टेस्ट, बोथ डू नॉट अंडरगो फ्लेम टेस्ट। ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अप्रोक्सीमेटली सेम। ये बोथ ऑफ देम, ये आपका वार्म रिएक्शन जो होता है वाटर के साथ में, वाटर के साथ में जो रिएक्शन होता है इज माइल्ड। इसको देखेंगे आप लोग, उसके बाद देखेंगे ये जो आपका हाइड्रोक्साइड जो बनाता है, हाइड्रोक्साइड जो बनाता है वो माइल्ड बेसिक होता है। जैसे कि आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये हम लोग यूज कर सकते हैं, हम लोग को एंटासिड के तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी में सिमिलरिटीज है, जैसे कि बेरिलियम एल्यूमिनियम में सिमिलरिटीज है, ये अब आपका एनसीईआरटी में भी है बेरिलियम और इसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ही है अप्रोक्सीमेटली। both of them produces covalent compounds, both of them does not react with water, and both of them does not show plus 2 oxidation state whenever in the covalent form. Okay, so you should remember these points. And क्यों होता है ऐसा, ऐसा क्यों होता है, देखिए आप लोग, लिथियम से मैग्नीशियम जो है पीरियोडिक टेबल में, इसके पहले यहाँ पे सोडियम है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, जैसे कि ऊपर से आप लोग नीचे आते हैं तो इसका इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है। ठीक है, और जब राइट से लेफ्ट से राइट में जाता है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी डिक्रीज होता है। और साइज में भी ऐसा ही है, ऊपर से नीचे आओगे तो इसका साइज ज्यादा होगा, अगर लेफ्ट से राइट में जाओगे तो इसमें साइज डिक्रीज होगा। तो इनका जो साइज है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाता है। इसीलिए इन लोगों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इसका जो ये होता है हाइड्रेशन एंथैल्पी के वगैरह जो होता है, वो आपका यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। इस रिलेशन को बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। और रीजन क्यों है, रीजन है ये साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए। ठीक है, तो ये है हमारा डायगोनल रिलेशनशिप जो एनसीईआरटी में है। आप क्या करेंगे, इसको वीडियो को देखने के बाद हम लोग आप लोग आपका जो एनसीईआरटी है इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे देखिए, उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोगों ने सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। ग्रुप 2 के बारे में इतना ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उसका जो पॉइंट है वो भी सेम ही है। जैसे कि आप लोग ऊपर से नीचे जाओगे तो ऑक्साइड का बेसिसिटी और हाइड्रोक्साइड का बेसिसिटी बढ़ेगा। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है इसके ऊपर बेस करके हमारे नेक्स्ट क्लास में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग और एमसीक्यू सॉल्विंग क्लास हम लोग यहाँ पे करेंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और आखिर तक बने रहने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।